Om Shri Sai Ram. My most humble salutations at the divine lotus feet of our beloved Swami, and a very loving Sai Ram to all of you. I must thank you for inviting me once again to share my experiences with you. Just as you also mentioned earlier, I had told you that 1973 when Swami came to Simla, I had my first darshan. At that time, I didn't know anything about Swami. कोई विश्वास नहीं था, कोई श्रद्धा नहीं थी. And I missed the chance of even an interview because Swami left 3 days before he was supposed to leave. I had the interview card, but since there was no faith, did not make any attempt to go for the interview also. But after Swami left Simla, the market was flooded with books, and the first book that I read was Man of Miracles by Howard Murphy. And after that, just as I went on reading it, पढ़ने के साथ-साथ मन में जो प्यार और श्रद्धा उमड़ी, तब बड़ा पछतावा हुआ कि what a golden chance I had missed. Then Swami was, we were fortunate that following year again Swami came. That is the time when I could get a Pad Namaskar, my first Pad Namaskar from Swami. This I have already shared with you. But uske baad se, I could feel Swami's presence, subtle presence in everything, all around. मतलब जीवन में कुछ भी हुआ तो लगता था स्वामी साथ हैं. बहुत सारे ऐसे अनुभव होते हैं जिनको हम कभी तो इग्नोर कर देते हैं, कह के कि बाय चांस हो गया, बट नथिंग हैपेंस बाय चांस. इट इज ऑल बाय द डिवाइन विल. एनीथिंग दैट हैपेंस टू यू, अब धीरे धीरे समझ आने लगता है. सो आई शेयर जस्ट 2 experiences with you. One was around 75-76 only. भगवान को जाने हुए थोड़ा ही समय हुआ था, पर बुक्स के पढ़ने के बाद बहुत ज्यादा मन में डिवोशन और श्रद्धा आ चुकी थी. शायद दैट वाज द राइट टाइम. भगवान हैज हिज ओन वे ऑफ कनेक्टिंग यू टू हिमसेल्फ. किसका किस समय पर करना, ही नोज इट बेस्ट. उसके बाद ड्यूरिंग दैट टाइम माय हस्बैंड इज अ सिविल इंजीनियर, और उनको ना ट्रेकिंग के लिए कोई प्रोजेक्ट की इन्वेस्टिगेशन चल रही थी, तो इंटीरियर में जाना पड़ा. At that time, my son was studying in class 3 or 4, 75-76 की बात होगी. And he was in St. Edward's School in Simla. और आपको पता है सिमला में स्कूल बसेस का कोई ऐसा है नहीं, तब तो बिल्कुल भी नहीं था. जो मॉल से जाते थे बच्चे पैदल जाते थे, पर सिंस सेंट एडवर्ड्स वाज ऑन कार्ट रोड, तो जो लोकल बसेस वहां पर चलती थी बच्चे उसमें भी वापस आ जाते थे, कई बार चले भी जाते थे. So one day my husband had left for his trekking trip जो था उनका investigation के लिए. He was in the interior, and at that time we did not have any way of contacting. Also कोई mobile phones नहीं थे वहाँ पर, phone की facility भी शायद नहीं थी. And that day when my son returned from school, probably उनके कार्ट रोड से जब ये buses निकलती थी local, तो बहुत सारे बच्चे उसमें चढ़ जाते थे if they did not want to walk the distance. He also had got into a bus, and probably he was amongst the last few to get in, so he was very close to the door. And you know, पहाड़ों में जैसे curves होते हैं, at one curve जब बस मुड़ी तो इतना लोड था डोर के ऊपर that he being the last next to the door, the door opened and he fell out. And you can, दो curve पे थोड़ी सी slow हो जाती है बस, but the place where he fell, ऑन वन साइड वहां पर एक ब्रिक्स का पाइल था, मतलब पत्थर बड़े पड़े हुए थे, और दूसरी साइड पर एक ड्रेन थी और उसके भी स्टोन्स वगैरह थे. एंड जस्ट अ स्मॉल ग्रीन पैच इन बिटवीन जहां पर वो जाकर गिरा. एंड व्हेन ही फेल देयर, उसका अपना बैग जो पीछे था उसके नीचे आ गया. The impact was so much कि when he came home, he was then definitely the bus stopped और बच्चों ने उसको दोबारा चढ़ाया. 10 मिनट का वहां से रास्ता था. He reached home, and from the main road when he was coming towards अपने घर आ रहा था, his friends accompanied him. He was in a state of shock. You can imagine कि बच्चा ऐसे चलती बस से गिर जाए. How does he feel? And when he reached home, उसकी हालत, although there were no external injuries, I could not see anything. But when I opened his bag, the impact was so much कि aluminium का जो उसका tiffin box था वो bend हो गया था. मतलब he felt so hard there. I was really so concerned क्योंकि my husband had left already. There was no way to contact him. और वहाँ पर I have a daughter younger to him, दूसरा बच्चा छोटा है, and you're alone. What to do? Then I thought कि we did not have this facility in Simla कि अब डॉक्टर को फोन करो तो घर पे आ जाए. We had to go to the doctor. And since it was 3:30, 4 o'clock in the afternoon, then I somehow thought that in the secretariat there was a CGHS dispensary जहाँ पर हमारे डॉक्टर बैठते थे. I thought this is the time when he would be available. I knew that doctor. I took my son to him.
When I took him to the doctor, he examined and he said कि कुछ नहीं हुआ इसको, बच्चे को लगता तो नहीं है कुछ मुझे, but बाहर से तो नहीं लगता, but it could be some internal injury also, अगर ऐसे जोर से गिरा है. So you just अभी तो इसको जाकर हल्दी वाला दूध पिला दो और इसको थोड़ा रेस्ट करने दो, एंड रात को भी नॉर्मल खाना खा के जो भी खाता है, when he sleeps just keep एक ध्यान रखना कि convulsions वगैरह ना हो, because अगर internal bleeding वगैरह हो तो उसका भी डर हो जाता है. And fortunately, nothing happened, and the child was fine. He slept well, although I was awake the whole night watching him. And in the morning, I reported to the doctor that ऐसा कुछ unusual तो लगा नहीं. And then the doctor said that luckily nothing has happened. It was just a state of shock. And when I just think about it, now you think when I can't see it happen by chance, because एक तरफ इतने पत्थर पड़े हो, दूसरी तरफ नाली खुदी हो और इतना ग्रीन पैच छोटा है, वहीं पर वो बच्चा गिरा. Then you realize that there is Swami's hand in everything. अब तक तो इतना विश्वास मन में आ गया था that nothing happens without his divine will. Nothing, not even a leaf moves without it. Blade of grass भी नहीं हिल सकता भगवान की इच्छा के बिना. So ऐसे छोटे छोटे जब अनुभव आपके जीवन में होते हैं, never let them go, let them pass just as a coincidence या matter of chance. Nothing happens by chance. It is all divine hand. उसको अगर हम देखना सीख जाते हैं, तो हमारा जो विश्वास है भगवान में वो और अधिक दृढ़ होता जाता है, हमारा फेथ रीइंफोर्स होता जाता है. सो कभी भी किसी भी घटना को आसानी से मत लीजिए. अब जब मैं आपसे बात कर रही हूँ, आई वाज जस्ट रिमाइंडेड ऑफ 1 or 2 एक्सपीरियंसेस जो मुझे बहुत से याद भी रह जाते हैं. Once in 93, I think 93 के बाद, because I had started going for सेवा in 93 only. I think जब पहले 15 days की सेवा होती थी, I never went, पर उसके बाद उन्होंने 1 week की भी अलाउ कर दी थी. So then I started going to Parthi for Prashanti Seva. I think it was 90s में था, late 90s में. I went for Seva. When I went for the first time, कुछ इतनी समझ नहीं होती और बाबा जैसे हमें पाद नमस्कार देते थे, हम लोग लाइनों में बैठ जाते हैं. तो स्वामी जब I was sitting there and जब स्वामी आए, स्वामी ने जब आए, मैंने भी पाँव छुए और स्वामी दूर से हाथ उठाकर वेरी हैप्पी बोल रहे थे. दैट वाज द फर्स्ट टाइम आई हर्ड हिम. सो मुझे लगा स्वामी एक तरह से प्रोत्साहन दे रहे हैं. व्हाट वाज ही हैप्पी विद, आई डोंट नो. हमारी उनको सेवा ठीक लगी या हमारे हम वहां पहुंच गए इसके लिए स्वामी ने हमें एक तरह से वेलकम किया. ही सेड वेरी हैप्पी. दैट वाज, एंड आई कुड गिव अ लेटर आल्सो, जस्ट एज पीपल हैड टोल्ड मी कि हम दे सकते हैं. पाद नमस्कार भी लिया स्वामी का. उसके कुछ सालों के बाद फिर ऐसे ही, तब तो इतना ही अनुभव था. फिर उसके बाद हर साल पाद नमस्कार मिलता था, एंड वी कंसिडर्ड आवरसेल्व्स बहुत वेरी फॉर्चुनेट कि सेवा में जाएंगे तो कम से कम इतना तो एश्योर्ड है कि भगवान के चरण छूने को मिल जाएंगे. अब तक समझ चुके थे कि चरण स्पर्श का महत्व क्या है. सो व्हेन आफ्टर अ फ्यू इयर्स वी ऑल वर, हमें लालच होता है ना कि स्वामी जब पाद नमस्कार देने आएंगे तो हम अपनी विभूति भी ब्लेस करवा लेंगे, कोई फोटोज भी ली तो ब्लेस करवा लेंगे, लॉकेट्स चेंज जो गिफ्ट लेनी है वो भी भगवान का हाथ लग जाए. हम सब ऐसे ही करते हैं. तो तब उस समय एक दिन था कि मैं आई जस्ट थॉट कि चिट्ठी भी देनी है भगवान को, उनसे चीजें भी ब्लेस करवानी है और आज भगवान से बात भी जरूर करनी है. क्योंकि स्वामी जब आप आते हैं तो आपकी तो जबान बंद हो जाती है, आप तो कुछ बोल ही नहीं पाते. So I had thought I must make an effort and say something to Swami, and what I had in my heart was only this: Swami, be with me always and be my Sadguru. That is what I wanted to say. कि एक संभाषण का भी हमें एक लालच होता है ना. भगवान के दर्शन तो हो जाते थे, पर एक संभाषण भी, स्पर्श भी हो जाता था, पाँव छू लिए तो एक लालच फिर भी बना रहता है कि स्वामी से कुछ बात कर लें. तो when I just thought of that कि आज ये करना है, but then I thought I have a packet in my hand to get blessed. चिट्ठी भी देनी है और मुझे बात भी करनी है, चरण भी छूने. Will I be able to do all that in one go? ये ना हो कि इन सब बातों के चक्कर में चरण छूने रह जाए. Then I was just debating with myself जब मैं ऐसे बात कर रही थी. स्वामी जब थोड़ा दूर थे मेरे से, 3-4 लोग जो लेफ्ट पर थे अभी उनके पास थे. I put my hand forward, अपनी चिट्ठी आगे बढ़ा दी, स्वामी ने उसको ले लिया. स्वामी थोड़ा पास आए तो पैकेट भी आगे बढ़ा के ब्लेस करवा लिया. बड़ी खुश थी मैं कि ये तो काम तो मेरे हो ही गए. एंड व्हेन स्वामी केम अ लिटिल क्लोजर, आई सेड दैट आल्सो. स्वामी बड़ा तैयारी की थी क्योंकि उस समय नहीं तो जबान में खुद पक्का किया था कि आज जरूर बात करनी है. देन आई सेड, स्वामी be with me always and be my Sadguru. I said that and Swami again said very happy. अब स्वामी जैसे ही मेरे पास आए, I had the charan sparsh also. भगवान के जब मैंने चरण छुए, आई फेल्ट द सॉर्ट ऑफ अ करंट वेंट थ्रू माय बॉडी. जैसे एकदम सिहर उठता है इंसान, बिजली जैसे पहुंच जाती है शरीर में.
I could feel that current going through my body and I was very happy, in bliss. और मैंने आंखें बंद, मतलब उस समय थोड़ी देर तो 2-3 मिनट तो ऐसे I was lost to myself. मुझे अपनी सुध नहीं थी कि मैं कहाँ बैठी हूँ. It was such a blissful experience. And then Swami went away from there and I was fully satisfied. जो सोचा था, स्वामी से बात भी कर ली, स्वामी ने very happy भी बोल दिया, चरण भी छू लिया, and was very happy. एंड हम लोग जो सारे सेवा के लिए बहुत सालों से जा रहे हैं, वी ऑल नो कि उसके बाद हमें जब लास्ट डे होता था तो हमें बैठा दिया जाता था लाइनों में, बाबा के चरण स्पर्श उसी दिन ही होते थे और उसके बाद हम मंदिर के बैक पर जाकर हम लोग विभूति और कुमकुम हमें मिलता था. वी ऑल बीन एक्सपीरियंसिंग दैट. तो जब वहां पर मैं स्वामी जब मैंने चरण स्पर्श किया, स्वामी चले गए, उसके बाद सबको प्रॉपर एंक्लोजर्स में बिठा देते हैं. व्हेन स्वामी फिर ही टेक्स अराउंड दर्शन भी, हम सब लोग लाइनों से हटकर प्रॉपर हमें एंक्लोजर्स में बिठा दिया. अब जब स्वामी दूर से आ रहे थे तो मन में एक बात आई. देखिए, आपके मन में जो इच्छा आती है ना, यू नेवर नो, भगवान को सब पता होता है. मन में एक इच्छा आई कि भगवान, मैंने आपको बोला कि आप मेरे सदगुरु बनिए, बी विद मी ऑलवेज, आई जस्ट वांट कि मेरे सदगुरु बनकर हमेशा मेरा मार्गदर्शन करिए. जब मैंने ऐसा बोला, आपने वेरी हैप्पी भी बोला, तो क्या यही नहीं बनता था कि आप मेरे सिर पर अपना हाथ रखते? जब मैंने आपको गुरु मान लिया, आपने हाँ भी बोल दिया, हैप्पी भी बोल दिया, तो मेरे सिर पे हाथ रखना तो बनता था ना स्वामी. आपने मुझे आशीर्वाद नहीं दिया. When I was just thinking like that, a lady, Mrs. Markan Swam विहार की हैं, I still अभी भी मुझे याद दिला देती हैं. जब दोबारा हम लोग बैठे तो she was sitting by chance, मेरे से 1-2 लोग छोड़कर बैठी हुई थी. And then she just looked at me, कहती हैं, क्या प्यार से तेरे सिर पे हाथ रख के गए? मैंने कहा, when? गलती लगी होगी, because when I felt that current go through my body, but I did not feel the touch. मुझे नहीं पता चला. I was so lost. मैंने आपको बताया, मेरे को जैसे सुध ही नहीं रही. Then I said, आपको गलती लगी होगी. It could not be कोई किसी और के रखा होगा, मेरे नहीं रखा. कहती, तेरा तो अब सफेद से दूर से दिखाई देता. I had stopped dyeing my hair long back. तो तेरा तो सफेद सर दूर से ही दिखाई देता. How can I make a mistake? Oh, then I thought, स्वामी, मेरे मन में ये इच्छा बाद में आई कि आपने गुरु अपने, अगर मेरे को अपना शिष्य माना है, मैंने आपको अपना सदगुरु बनाया है, तो आशीर्वाद तो बनता था ना, सर पे हाथ रखना तो बनता था ना. एंड स्वामी had already done it. I did not even know about it. And then इतना मुझे अंदर से आनंद हुआ, इतना satisfying ये एक्सपीरियंस लगा. अभी तक इतने साल हो गए हैं, बट अगर मिसेस माखन मुझे साइंस सेंटर में मिल जाती हैं तो वो याद कराए बिना भूलती नहीं है. ओ, आई रिमेम्बर कैसे आपके सर पर हाथ रखा था स्वामी ने. सो ये जो छोटी छोटी बातें हैं ना, ये आपके जीवन की एक तरह से ट्रेजर बन जाती हैं. छोटी छोटी बातें बहुत सी होती हैं. देन इट्स नॉट दैट दे हैव नॉट बीन डिफिकल्टीज. इतने अप्स एंड डाउन्स आए हैं लाइफ में, इतनी ज्यादा कई बड़ी तकलीफें आई हैं, पर हमेशा एक चीज का आभास हुआ है कि स्वामी इज ऑलवेज बिसाइड्स यू. कोई भी संकट होगा, अब ये भी उन्होंने समझा दिया कि तुम्हारे कर्मों के अनुसार दुख सुख तो सबके जीवन में आना है. वी कैन नेवर एस्केप फ्रॉम इट, नन ऑफ अस, क्योंकि हमने जो किया है वो काटना तो है, जो बीजा है वो तो काटना ही पड़ेगा. बट उसको भी कटाने में स्वामी इतनी दया करते हैं कि आपके कर्म भी कटा देते हैं, पर आपको टूटने नहीं देते हैं, पूरा सहारा देकर रखते हैं. ये उन्होंने समझा दिया. जब बहुत ज्यादा कठिनाइयां आई तो मैं स्वामी से सिर्फ एक ही प्रार्थना करती थी, स्वामी कुछ भी हो जाए, दुख तो आएंगे जाएंगे, सब कुछ जीवन में लगा रहेगा, पर अपना भरोसा कभी मत टूटने देना. कितनी भी कठिन परिस्थिति क्यों ना आ जाए, आपके ऊपर हमारा भरोसा बना रहे. क्योंकि अगर वो भरोसा चला गया तो हमको तो जैसे पत्ते को हवा उड़ा के कहाँ ले जाती है, हमारा तो कोई आश्रय ही नहीं है, हमें तो अपना अस्तित्व ही नहीं समझ आएगा. तो प्लीज स्वामी, लेट दिस डिफिकल्टीज कम, give me strength to go through them, and please let my faith never waver. वो मेरी ऐसे ही बनी रहे. और भगवान की कृपा से उन्होंने इतना सहारा दिया. देखिए, कई बार बच्चों के जीवन में भी कठिनाइयां आती हैं. आई नेवर सेड कि स्वामी ये कठिनाई मत दो. आई ओनली प्रे टू हिम कि इनको, जिसके सबने, हम माँ बाप भी कई बार अपने बच्चों का कर्म अपने ऊपर नहीं ले सकते. आई ओनली प्रे टू हिम कि स्वामी इनको सहने की शक्ति दो, इनके साथ रहो, लेट देम पास थ्रू इट स्वीटली, कामली चले जाएं. ऐसे जब हम सीख जाते हैं तो धीरे धीरे देखिए, ये कठिनाइयां भी है ना, हमें स्वीकार करना, सहर्ष स्वीकार करना प्रसाद की तरह आ जाता है. हम उतने दुखी नहीं होते जितने हम अन्यथा होते अगर भगवान में हमारा भरोसा नहीं होता. और कष्ट देकर कई बार हमें पता है भगवान हमें सुधारता है.
हमारी एवोल्यूशन के लिए जरूरी समझता है, तभी हमें कष्ट देता है, बिकॉज ही हैज टेक अस टू दैट स्टेज जहां पर वो खुद हैं। भगवान हमें बार बार कहते हैं, दिव्यात्म स्वरूप लारा, यू आर गॉड योर सेल्फ, यू आर लव इनकारनेट, सब कुछ हमें स्वामी कहते हैं, बिकॉज दैट इज व्हाट ही वांट्स फ्रॉम अस, कि हम अपने दिव्यत्व को पहचाने। भगवान कहते हैं मैं भगवान हूं, पर तुम भी भगवान हो, but the only difference is I know it, you do not know it. He wants to raise us to that level. तो मैं बस यही कहूंगी, इतने कष्ट आते हैं जीवन में, सब कुछ होता है, परंतु उसका स्वागत कीजिए। उसके पीछे आपके भगवान का क्या मकसद है आपको नहीं पता। और एक बार ये भी कहा जाता है कि भक्तों के जीवन में ज्यादा कष्ट क्यों आते हैं। जो दुष्ट लोग हैं वो तो बहुत फलते फूलते नजर आते हैं, भक्तों के जीवन में इतना कष्ट क्यों आता है? द ओनली रीजन फॉर दैट इज क्योंकि स्वामी जितने जल्दी आपके कर्म पूरे करवा देंगे, उतनी जल्दी ही तो आप उनके पास जा सकेंगे ना। हर किसी को जाने से पहले अपनी स्लेट साफ करनी है, उसको साफ जब तक करेंगे नहीं तो छूटेंगे नहीं। तो जब भी ऐसा कोई कष्ट है तो उसको ये सोचकर स्वीकार कीजिए कि स्वामी आपके साथ रहते हुए कब कट जाएगा पता नहीं। मैं कई बार, मेरे को एक बात याद आ जाती है, गुप्ता जी थे वहां पर जिन्होंने ऋषिकेश का स्कूल वगैरह भी बनवाया, मेरठ में शायद रहते थे। स्वामी ने उनको कह दिया था कि यू आर गोइंग टू लूज योर आई साइट फॉर सम टाइम, इफ यू वांट आई कैन पोस्टपोन इट टू सम अदर बर्थ, नहीं तो इट हैज टू हैपन। तो व्हाट डू यू वांट, इसी जन्म में काटना है? तो उन्होंने कहा स्वामी इस जन्म में तो आप साथ हो, कट जाएगा, इसी जन्म में कटवा लीजिए। तो मुझे लगता है एंड दैट हैपन, उनकी आई साइट 2-3 साल के लिए चली गई। अपनी समिति के सहयोगियों के साथ वो अपना सारा काम भी करते थे, एंड देन आई साइट उनको वापस भी मिल गई। तो व्हाट आई फील इज दिस कि अगर दुख भी आता है तो यही मान लीजिए कि भगवान जल्दी से जल्दी आपको अपने पास अपने साथ मर्ज करने का मौका देना चाहता है, जिससे बढ़कर हमारे जीवन का लक्ष्य हो ही नहीं सकता। जब स्वामी के अनुभव याद करते हैं, देयर आर मेनी, बहुत कुछ याद आता है, और ये जो शिक्षाएं हमें उससे मिलती हैं वो भी याद आती हैं, तो हम इन पर स्थिर रहें। सबसे मैं यही कहना चाहूंगी कि जो भी आपके जीवन में हो, जिस जैसे खुशियों को झोली फैलाकर स्वीकार करते हैं, दुखों को भी वैसे ही स्वीकार कीजिए, क्योंकि वहां भी भगवान की इच्छा के बिना कुछ नहीं हो रहा। कोई आपके साथ कड़वा बोलता है, गलत व्यवहार करता है, तो उसके लिए मत उसको दोष दीजिए। भगवान का मकसद क्या है? आपकी एवोल्यूशन। किसी के गलत करने के बाद भी अगर आप उसके साथ प्यार करते हो, उसके लिए दुर्भावना नहीं आते, उसको क्षमा कर देते हो, तो यू हैव टेकन अ स्टेप फॉरवर्ड। आप एक सीढ़ी ऊपर चढ़ गए, और जो आपको वो प्रमोशन दिलवाने के लिए माध्यम बना, उसका शुक्रिया कीजिए। वो खुद बुरा बनता है पर आपको एक सीढ़ी ऊपर चढ़ा जाता है। सच पीपल, इफ देयर आर नो टेस्ट, देयर इज नो प्रमोशन। और द हायर द लेवल ऑफ योर evolution, the more difficult the test will be. So accept it as that. Nothing is happening without his divine will. जब हम ये समझ लेते हैं तो दुख दुख नहीं लगता, और हम आराम से उनमें से निकल जाते हैं। बट हमें हर समय एहसास होता है कि हमारे स्वामी हमारे साथ हैं। I think I shall end with that. Sign off.